class, and in this class we will cover the rest part of the chapter 1, which is the alphabet. In previous video I have covered the part which is regarding alphabets, vowels, consonants, and open your books, and today we will cover the topics are topics which are going to cover. I am writing here, you just read it. First, rhyming words. When you rhyme a poem enjoyfully, then आपको कुछ वर्ड्स ऐसे मिलते हैं जिसमें आपके कुछ वर्ड सेम साउंड होते हैं. लाइक आप जैसे कोई भी पोएम राइम करते हैं, रीड करते हैं, तो उसमें कुछ वर्ड्स राइम करते हैं. मीन्स फ्लाई, जैसे आपने ले लिया होम, कम, है ना. तो इस टाइप के पोएम्स हैं, तो इस टाइप के वर्ड्स हैं. तो इसमें सबसे पहले तो वन पोएम इज गिवन and its number is 7. Okay, so we will learn this topic through this poem. So I am writing some lines of the poem on the board. Your first line is, first I will write, then I will read it in rhyming form. You just open page number 7. This is your first line. Through the house, what busy joy. Second line is, just because the infant boy has a tiny tooth to show. These are the 4 lines. I have written here 4 lines, and this is called stanza. Okay, this is called stanza. Now I am going to start to read it. Okay. Through the house, what busy joy, just because the infant boy has a tiny tooth to show. I have got a double row. This is not a chapter. When we rhyme a poem, so it's, हम इसको कैसे पढ़ते हैं, हम इसे राइमिंग फॉर्म में पढ़ते हैं, जिससे मैंने अभी आपको रीड करके बताया. अब मेरा टॉपिक क्या है, राइमिंग वर्ड्स. इसमें आप क्या सीखेंगे, व्हाट विल यू टीच टुडे, आप सीखेंगे राइमिंग वर्ड्स. नाउ हाउ कैन वी फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स. सो जॉय, बॉय, बोथ वर्ड्स आर राइमिंग वर्ड्स. ये कैसे वर्ड्स है क्लास, ये हैं आपके राइमिंग वर्ड्स. नेक्स्ट, हैज़ अ टाइनी टूथ टू शो. आई हैव गॉट अ डबल रो. सो आई विल सर्कुलेट जॉय, बॉय, शो, रो. These are your rhyming words. अब आप मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे, जॉय, बॉय, शो, रो. नेक्स्ट, अब क्या कैसे चेक करेंगे इसे, देखिए. फर्स्ट है जॉय.
इसका राइमिंग वर्ड्स बॉय. सेकेंड वन इज शो and its rhyming word is row because the sound are same. Sounds are same of both the words. And in this poem there are so many words. Like second stanza हम start करते हैं. You just rhyme with me. All as white, all as small, yet no one cares for mine at all. He can say but half a word, yet that single sounds preferred. अब हम इसके वर्ड्स को फिर से राइम करके देखेंगे कि हम और किस तरीके से राइम कर सकते हैं. सो थर्ड इज small and fourth is word. Okay, now look into line number 5. Small, all. The rhyming form of this word is all in this poem. Okay, given in this poem. And word preferred. Preferred. Okay class. Next stanza is to all the words that I can say in the longest summer day, he cannot work, yet if he put with mimic motion out his foot. अब इसमें देखिए आप कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं. Then I am going to write the word as say. Okay, and 6 is put. आई होप अब आपको समझ आया होगा कि हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द राइमिंग ऑफ दीज वर्ड्स. सो इन दिस पोएम द राइमिंग वर्ड्स फॉर से इज डे. राइमिंग वर्ड इज फॉर से इज डे एंड फॉर पुट इज food. So we have found 6 words. Repeat with me. Joy, boy. Show, row. Small, all. Word, preferred. Say, day. Put, food. So what is the similarity? Sounds are same and same with here. In 4 words sounds are same. Up we can take other examples also. Now come on page number 8 and 2 lines are left. As if he thought he were advancing, it's price more than my best dancing. So here the words are advancing, advancing, and next one is dancing. So advancing and dancing are the same sound words because their sounds are same. अब कुछ अदर वर्ड्स लेकर हम उनके सेम साउंड वर्ड्स बनाने के लिए ट्राई करते हैं सो दैट आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए. सो हियर वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स. फर्स्ट बॉल वी कैन टेक, टू pool we can take. Okay, next night we can take. 4 sun we can take. And there are so many words. और वर्ड्स हम क्या ले सकते हैं? nip and pen. So
again I am describing that rhyming words are those which are having same sound words. They are having same sound words in pronouncing. Like ball, its same sound words should be ball, tall. Now think another word for it. Tall, call, है ना, tall, call. And next one is mall. These are same sound words and you can make different words. ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वर्ड लिखने हैं या आपको यही फॉर्म करने हैं या इन्हीं वर्ड्स को आपको रटिफिकेशन करना है. सर जस्ट यूज योर माइंड इन क्रिएटिव वे. लाइक सेकेंड वर्ड इज पूल, कूल, ओके, टूल. नेक्स्ट विल बी स्कूल. These are the rhyming words of pool. So just try to make different words. हमेशा ट्राई किया कीजिए कि आप एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स को फॉर्म करना सीखें. ऐसा नहीं है कि आपने टूल का कूल लर्न किया है तो ऑलवेज कूल ही कूल लिखेंगे आप. यू जस्ट चेंज इट. आप उसे चेंज कर सकते हैं, आप उसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं. ये क्या है कि इस तरीके से आपको वर्ड्स की नॉलेज होगी. अब नेक्स्ट है हमारा नाइट, राइट, नाइट, राइट. और क्या हो सकता है? ब्राइट. ओके. नेक्स्ट वन इज टाइट. सो आप पढ़िए इसको. नाइट, राइट, ब्राइट, टाइट. पूल, कूल, टूल, स्कूल. बॉल, टॉल, कॉल, मॉल. नेक्स्ट सन. अब सन को पढ़ते ही आपके माइंड में आइडियाज़ आने लगे होंगे क्योंकि आपने इतने सारे अपने वर्ड्स पढ़े हैं अभी, है ना. तो आपके माइंड में आइडियाज़ आने लगे होंगे कि मैम को मैं ये बताऊँ, मैम को मैं ये वाला वर्ड बताऊँ, है ना. सो जस्ट ट्राई. सन, बन. और क्लास हम क्या ले सकते हैं? गन. ओके. एंड लास्ट रन. अब इसे राइमिंग फॉर्म में पढ़ते हैं. स्पीक विथ मी. सन, बन, गन, रन. ओके. सन, बन, गन, रन. नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है क्लास? निब. निब है ना. टिप. और क्या ले सकते हैं? रिप. निप, टिप, रिप. निप, टिप, रिप. नेक्स्ट है पेन. नाउ थिंक इन योर माइंड कि पेन के राइमिंग वर्ड्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं. तो पेन, एक नंबर आपने बताइए सीखा हुआ है, वो नंबर क्या है? 10, है ना. एक नंबर आपने सीखा हुआ है, दैट इज 10. ये आपका मैथ्स का नंबर है 10. तो पेन, 10. और नेक्स्ट वर्ड क्या बना सकते हैं हम? बैन एंड हैन. निप, टिप, रिप. पेन, 10, ban, hand. So this is the discussion about how to make rhyming words with the help of given word. Let's revise it one more time. Ball, tall, call, mall. Pool, cool, tool, school. Night, right, bright, tight. Nip, tip, rip. Pen, tan, ban, hand. जब आप इसे राइमिंग फॉर्म में पढ़ेंगे ना तो यू फील, आपको भी अच्छा लगेगा कि एक ऐसा लगेगा जैसे आप सॉन्ग सिंगिंग कर रहे हैं, है ना. राइमिंग मीन्स जस्ट लाइक अ सिंगिंग. सो दिस इज द डिस्कशन अबाउट राइमिंग वर्ड्स. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज which is given in this chapter is dictionary. Which is dictionary.
dictionary. Okay class, next topic is dictionary and its spelling is DICTIONARY, dictionary. इसकी स्पेलिंग आपको लर्न करनी है, लर्न द स्पेलिंग ऑफ डिक्शनरी. अब आप नाउ यू विल थिंक कि ये कौन सा न्यू वर्ड है. सो दिस इज नॉट अ न्यू वर्ड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. इसमें हमें क्या होता है, क्या है ये डिक्शनरी. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ. इसमें आपको मिलते हैं न्यू वर्ड्स. डिक्शनरी में यू कैन सी मोस्ट ऑफ द वर्ड्स. जैसे कुछ वर्ड्स का आपको मीनिंग समझ में ना आए, देन जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हैं, इसी तरीके से आप कोई भी न्यू वर्ड है और उसके लिए आप कंफ्यूज हैं और आपको उसका मीनिंग नहीं आता है, देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ डिक्शनरी. जब डिक्शनरी में आप न्यू वर्ड्स को सर्च करेंगे तो उसकी आपको क्या मिलेंगे, मीनिंग्स. अब नाउ द क्वेश्चन इज कि डिक्शनरी है क्या. सो अ डिक्शनरी इज अ बुक दैट गिव्स यू अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स. डिक्शनरी क्या है, अ डिक्शनरी इज अ बुक दैट गिव्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक, अब इसे यूज कैसे करेंगे, हाउ टू यूज, हाउ टू यूज अ डिक्शनरी. डिक्शनरी को हम यूज कैसे करेंगे. सो देयर आर सम स्टेप्स, देयर आर सम स्टेप्स. इसमें कुछ स्टेप्स हैं. जैसे आपने लिखा फर्स्ट लेटर्स, ठीक है. देन आपने लिखा मिडिल लेटर्स, ठीक है. एंड नेक्स्ट पे आपने लिया बैक लेटर्स. अब आपके माइंड में ये कंफ्यूजन होगा कि मैम ने ये क्या लिख दिया है ना. तो डिक्शनरी का बेसिकली जो बेस होता है उसमें हमें सबसे पहले लेटर्स को ही सर्च करना है कि वेयर इज लेटर ए, वेयर इज लेटर जेड एंड वेयर लेटर एस कम्स, कहाँ पर एस आता है. तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं मैंने, ए बी सी डी ई एफ एंड जी. I have categorized first letters like A, B, C, D, E, F, G, ठीक, and G. फिर इसके बाद H, I, J, K, L, M, N, O, P and Q. ये मैंने आपके लेटर्स की पॉइंट्स बनाए हैं मिडिल लेटर्स में, ठीक है. देन आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड. दिस इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड द परफेक्ट डिक्शनरी डिमांड्स अ परफेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स लाइक दिस. आवर वर्ड स्टार्ट्स विद द लेटर्स. हमारा वर्ड कोई भी है तो वो किसी ना किसी लेटर से स्टार्ट होगा. तो उसके लिए आपको ये अपने माइंड में रखना है कि फर्स्ट लेटर क्या है, मिडिल लेटर्स क्या हैं, बैक लेटर्स क्या हैं. बैक समझते हैं, बैक मतलब पीछे की साइड, जैसे मेरे पीछे वाइट बोर्ड है. एंड फ्रंट लेटर्स क्या होंगे, जैसे मेरे आगे ये बुक है. और मिडिल में क्या होगा, जैसे आई एम स्टैंडिंग बिटवीन बुक एंड वाइट बोर्ड. मैं वाइट बोर्ड और बुक के बीच में खड़ी हूँ तो मैं हो गई मिडिल या सेंटर या बिटवीन, ठीक है ना. अब आप कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं हम, जैसे अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं.
कि हमने यहाँ पर क्या सीखा। अब आपको एक वर्ड है जिसकी मीनिंग नहीं आ रही है, तो आपने लिया स्मॉल। आपको स्मॉल की मीनिंग नहीं आती है, तो आप स्मॉल की मीनिंग के लिए क्या करेंगे, यू जस्ट गो टू द लेटर एंड लेटर एस। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट लेटर देखेंगे, क्या है, एस। अब हम अपने की पॉइंट्स पर जाकर एस देखेंगे कि हमारा की पॉइंट कहाँ आ रहा है, बैक लेटर्स में। इट मीन्स मुझे ए सर्च करने की नीड नहीं है, आई डू नॉट नीड टू सर्च ए टू जी और एस टू क्यू। आपके माइंड में आएगा कि मैम ने हमें बताया था कि जब हम सर्च करते हैं लेटर से तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं और बैक लेटर्स, और हमारे बैक लेटर्स होते हैं आर टू जेड एंड एस कम्स इनटू बैक लेटर्स। तो जस्ट ओपन द पेज एंड फाइंड आउट द एस। वहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर स्मॉल, देन आपने लिखा, देन आपने सर्च की स्पेलिंग SMALL, ठीक है। जब आप स्मॉल की स्पेलिंग सर्च करेंगे देन आपको वहाँ पर उसका क्या मिलेगा क्लास, मीनिंग, और क्या मिलेगा, न्यू वर्ड्स। अभी तो आप स्मॉल को समझते हैं छोटा, लेकिन स्मॉल का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, टाइनी, शॉर्ट, ठीक है। तो डिक्शनरी विल हेल्प यू आउट टू फाइंड न्यू वर्ड्स एज वेल एज meanings. So this is the discussion about dictionary, and with all the words, if you are searching like happy, word happy, so just happy, first of all see the first letter H. H is first letter. Now H comes into middle letters and middle letters में आपका आ रहा है H, happy, and you will find here the words happy, cheerful and glee. So this will help out, you will find new words as well as meanings. So this topic is clear now. हमारा first topic था rhyming words as we have written on the board, then the dictionary which I have told you. So class, this topic is completed and you just revise the topic and you can take a screenshot. Thank you class.